Good morning, students. Here I am Yogesh. So, in this video, I am going to teach you about this first chapter of your computer subject. So, this is your computer book, and we will start in this video from the first chapter. So, first chapter name is convergence. So, now let's begin with this puzzle. So, what are the different among the following? So, a lecture by Mr. Abdul Kalam Azad, former President of India. Second, the complete work of William Shakespeare, an electricity bill, picture of your childhood, a call to your friend, a grocery list, a staff meeting in the marketing department, a slide of business presentation, a program in C++, and a speech by Mahatma Gandhi. So all of these are the different type of data or information. Okay, so for us, among almost all the above item are totally different, but for a computer, above information is same. Okay, so why it is same for the computer? So let's know the reason. In computer, each of these item is simply a collection of 1 and 0. So all of you know about the computer language. So there are the two language, low level language and the high level language. Okay, and the computer use low level language to understand the data, but now we are using high level language to communicate with the computer, but still the computer work on the machine level language, which is stand for the 1 and 0. We also call it binary language. Okay, so almost everything like text, sound, speech, film, graphic, animation, music can be digitized. Whatever gets digitized can be presented on computer and transmitted over a network. Therein lies the future. Okay, so everything, okay, just like your sound, your text, your picture, your videos, okay, so everything can be digitized in the form of 0 and 1. Okay, so that's why we can save our these type of information in computer. Okay, so in earlier time, telephone, print media, radio, television, film, photographs, and computer data were treated as a separate entity. Okay, so in earlier time we treated these all type of data or these all type of technologies as separately. Okay, but innovation in the late 20th century have lead to the merging of many new technologies. Okay, the computer technology, content technology, and the communication technology. Okay, so referred as a C3's technology, okay, into one product or service. The process by which all these separate media become digitized is known as a digital convergence. Okay, so in this video we will learn about the convergence. Okay, so I think it's a new word for you. Okay, so what is the mean of convergence? So convergence mean when two or more technology merging and produce a single output or a single way to handle these both technologies. Okay, so it is known as a डिजिटल कन्वर्जेंस. ओके, सो जब भी हम लोग बात करते हैं कि दो एंटिटी या फिर दो कोई भी अलग अलग डिवाइस जो अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रही है, और हमने एक प्रोडक्ट एक अलग से एक डिवाइस बनाया है जिसके अंदर हमने लोगों ने दोनों टाइप की टेक्नोलॉजीज़ को इमर्ज कर दिया और वो एक सिंगल डिवाइस दोनों तरीके की काम कर रही है. ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग डिवाइस को क्या बोलते हैं और ऐसे टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंस. ओके, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंस. ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन. सो द वर्ड कन्वर्जेंस मीन द यूनियन और मर्जिंग ऑफ टू और मोर थिंग्स टू मेक ए न्यू एंटिटी. ओके, सो जैसे आप लोगों ने पहले देखा होगा, जो पहले अगर आप लोगों ने नाम सुना है पेजर का. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ पेजर एक डिवाइस होता था जिससे हम लोग मैसेज भेजा था, केवल ओनली टेक्स्ट मैसेज भेज सकते थे.
फिर उसके बाद में आया आपका जो सेल फ़ोन वाला जो है आपका लैंडलाइन वगैरह जो आए थे उसके बाद में, उससे आप लोग क्या कर सकते थे, केवल लैंडलाइन से हम लोग क्या कर सकते थे, केवल वॉइस कॉल कर सकते थे। ओके, फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी और बढ़ी और फिर आया हमारे हाथ में हमारा मोबाइल फ़ोन। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फ़ोन फिर क्या हुआ, वहाँ पे हम लोग वॉइस कॉल तो कर ही सकते थे और साथ के साथ में उस फ़ोन से हम लोग टेक्स्ट मैसेज भी भेज सकते थे। ओके, सो ये चीज़ थी। तो वहाँ क्या हुआ, जब मोबाइल फ़ोन आया तो उसने दोनों टेक्नोलॉजीज़ को क्या किया, मर्ज कर दिया। ओके, फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी और बढ़ी, वॉइस कॉल के साथ साथ में आपका वीडियो कॉल भी चालू हुआ। ठीक है, फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चालू हुई, ये सब कुछ चालू हुआ। ओके, और केवल अभी जो आप लोग स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो वो केवल फ़ोन कॉल, मैसेज और ये इस सब के लिए काम नहीं आता है। हम लोग विद द हेल्प ऑफ स्मार्टफोन बहुत सारी चीज़ें काम में लेते हैं। ठीक है, यू कैन सेट योर अलार्म। ओके, यू कैन प्ले गेम, यू कैन प्ले म्यूज़िक। ओके, सो ये म्यूज़िक प्ले करने के लिए, गेम खेलने के लिए हम लोग अलग अलग डिवाइस काम में लिया करते थे पहले। ठीक है, बट अब क्या हुआ, ये सारी टेक्नोलॉजीज़ को इमर्ज कर दिया और एक सबका सब पूरा एक सेटअप कहीं में डाल दिया, आपके स्मार्टफोन के अंदर। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ स्मार्टफोन यू कैन डू एनी टास्क विच यू आर डूइंग विद डिफरेंट थिंग्स। ओके, सो ये जो आप लोग आपके हाथ में जो फ़ोन देख रहे हैं, ये भी क्या है, कन्वर्जेंस, डिजिटल कन्वर्जेंस का एक क्या है, एग्जाम्पल है। ओके, तो हम लोग अलग अलग डिवाइसेस, जैसे कि जैसे सपोज करो कि आप लोग प्ले स्टेशन काम में लेते हो गेम खेलने के लिए, म्यूज़िक प्लेयर काम में लेते हो, मतलब अलग से जो आपका म्यूज़िक प्लेयर होता है। ठीक है, वो आप लोग केवल म्यूज़िक के लिए ऑपरेट कर रहे हो, तो वहाँ क्या है कि वो सारी अलग अलग जो चीज़ें हैं वो ही सबको एक अलग से एक डिवाइस बनाया और उसी के अंदर क्या करा, सारी टेक्नोलॉजी को मर्ज करके उसमें सेट कर दिया। तो विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर सिंगल डिवाइस वी कैन यूज़ दिस ऑल टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज़। ओके, सो यही आपका क्या कहलाता है, कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजीज़ कहलाता है। ठीक है, ये जो सो द लिंकिंग ऑफ कंप्यूटर, मल्टीमीडिया एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ लीड टू द इमर्ज of an entirely new and modern world. Okay, so the impact of convergence of technology in our daily life can be best exemplified with the mobile phone. Okay, apart from the basic purpose of mobile technology, the latest cell phones support multiple features like, ओके, सो अभी जो क्या है कि केवल अपार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फ़ोन कॉल्स एंड मैसेज, जो अभी जो हमारा स्मार्टफोन है वो मल्टीपल वर्क करता है। जैसे कि क्या, यू कैन यूज़ द इंटरनेट इन ईमेल एक्सेस। ओके, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन लाइक म्यूजिक, वीडियो प्लेबैक एंड द playing game, you can operate these technology with your mobile phone. Okay, sending message, the main purpose of mobile phone. Okay, the basic computer application like creating, organizing document, worksheet, presentation, etc. Okay, the address book, organizer, calendar, calculator, dictionary, etc. So you can view your PDF files also. Okay, so these all are the in that particular left hand side. Okay, these all services you can use with the smartphone. Okay, and next video and audio conferencing with the different person at different places. Okay, providing map update or finding location. Okay, camera for the recording and high definition images and video. So all these technology you can use with that particular single device. So it is known as a convergence. Okay, so यही क्या है, एक convergence का example है. Okay, so the incorporation of all these technologies into a single device has led to the emerge of smartphone, which eliminate the need to carry multiple devices. Okay, so जैसे ही हमारे हाथ में जब स्मार्टफोन आया तो इसने क्या किया, सारे डिवाइसेस को एलिमिनेट करना चालू किया। ठीक है, तो अब देखते होंगे आप लोग कि पहले लोगों के घर में कंप्यूटर हुआ करते थे, अभी भी हैं, बट बहुत सारे काम हम लोग क्या करते हैं विद ये मोबाइल फ़ोन से हम लोग हमारे काम इजी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो टेक्नोलॉजी कन्वर्स हैज़ बीन beautifully utilized in devices like smartphone and tablets, which are being used worldwide because of their amazing feature and useful services. Okay, so convergence of technology. Now next देखते हैं कि टेक्नोलॉजीज का कन्वर्जेंस कैसे हुआ और क्या होता है। So convergence of technology is defined as a interlinking of computing
and other information technologies such as media, content, and communication network that has risen as a result of evolution and popularization of internet as well as activities, product and services इन द डिजिटल मीडिया स्पेस. ओके, सो ये बहुत सारी ये जो भी सारी चीज़ें हैं इनको सबको क्या किया, एक साथ करके एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ गए हम लोग. तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी. ओके, सो कन्वर्जेंस ऑल्सो रेफर टू द फिनोमिना ऑफ ए ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज़ डेवलप्ड फॉर यूज but is being utilized in many different content. Okay, so the convergence of information technology and communication technology has resulted into information and communication technology. Okay, which is stand like a ICT, information and communication technology. Okay, so next है the combination of information technology with the biotechnology has lead टू द डेवलपमेंट ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक. ओके, सो आप लोगों ने अगर नाम सुना होगा बायो इन्फॉर्मेटिक या फिर बायो इन्फॉर्मेटिक अगर सेक्टर का आपने नाम सुना होगा तो उसमें क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजीज तो यूज़ होती है और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी यूज़ होती है. ठीक है, इसने क्या किया है, हमारे जो रिसर्च के एरिया में जो भी काम थे उसको बहुत ईजी कर दिया है. सो ये क्या हो गया आपका, ये भी आपका एग्जाम्पल है किसका, कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजीज. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. सो कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी हैपन ड्यू टू डिजिटाइजेशन ऑफ कंप्यूटर. ओके, सो ये किस की हेल्प से पॉसिबल हो पाया, डिजिटाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, सॉरी कंटेंट. ओके, द कंटेंट कैन बी टेक्स्ट, ग्राफिक, वीडियो, एनिमेशन और ऑडियो. ओके, सो कंटेंट कुछ भी हो सकता है जो भी अच्छा. ओके, सो एक और चीज़ है, मल्टीमीडिया का मतलब क्या होता है. ओके, सो देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया. लाइक मीडिया मतलब कि द वे ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द वे ऑफ एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन बिटवीन टू पीपल और टू थिंग्स. ओके, सो आप लोग कैसे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ पिक्चर आप लोग मैसेज कन्वे कर सकते हो. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वॉइस आप लोग मैसेज कन्वे कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ वीडियो, विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट. Okay, see these all are the media with the that we can get help to convey our message or convey our information. Okay, so ये क्या है, डिफरेंट मीडिया है. ठीक है, और जब एक डिवाइस, ठीक है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ हम लोगों ने सारी टेक्नोलॉजीज़ को, सारे मीडियाज़ को क्या किया, ये मर्ज करके हम लोग एक पर्टिकुलर डिवाइस में हम लोग यूज़ में लेने लगे, तो फिर हमने इसको क्या बोल दिया, मल्टीमीडिया डिवाइस. ओके, सो आप लोगों ने पहले नाम सुना होगा मोबाइल फ़ोन, फिर उसके बाद में मोबाइल फ़ोन को चेंज करके मतलब कि उसका नाम हम जो सुने जाने लगा वो हुआ था आपका मल्टीमीडिया फ़ोन. ओके, सो जो आप लोग छोटा फ़ोन देखते हो ना, जैसे जियो का एक वो जो छोटा फ़ोन आता है. ओके, सो वी कॉल इट एज अ मल्टीमीडिया फ़ोन. तो मल्टीमीडिया फ़ोन क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि वी कैन यूज़ द वॉइस कॉल फैसिलिटी, वी कैन यूज़ द video call facility, and we can use the as a MP3 player or video player. Okay, so these all type of media we can use with the help of single device. Okay, so that's why it is called as a multimedia. Okay, so different type of media हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मल्टीमीडिया बोलते हैं. सो ये मतलब होता है मल्टीमीडिया का. ओके, सो दिस फिगर देखो ये सारी चीज़ें आपको कंबाइन करके क्या कर दिया, आफ्टर कन्वर्जन विद द हेल्प ऑफ सिंगल डिवाइस यू कैन ऑल दीज टाइप ऑफ फैसिलिटीज़. ओके, सो देखते हैं, चलो. सो नाउ हिस्ट्री ऑफ कन्वर्जेंस. ओके, सो इन 1691 व्हेन द वर्ब कन्वर्ज वाज coined, it implied the tendency of two lines to approach one another as streams of river flowing together. Uses of the word converge in the 20th century has become broader and primarily started with the emergence of computer, internet and mobile technology. Okay, so convergence become possible with the unification of previously distinct product that work using digital technologies. Okay, so the process of digital convergence implies that a computer function like a communicating device and
ए टेक्नोलॉजी सॉरी ए टेलीफोन फंक्शन लाइक अ कंप्यूटर। ओके, सो यही क्या हुआ, कन्वर्जेंस मतलब जाना जाने लगा। क्या है कि हम लोग एज ए कंप्यूटर को केवल कंप्यूटर ऐसे वर्क नहीं करते हैं, हम लोग अब उसको हम लोग ऐसे फॉर द वीडियो कॉल, फॉर वॉइस कॉल हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और हमारे स्मार्टफोन को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, एज ए कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो यही क्या है आपका कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजीज है। ओके, सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द रीज़न। तो क्या ज़रूरत पड़ी कन्वर्जेंस की, कि ये चीज़, ये सब जो टेक्नोलॉजीज़ हम लोग पहले भी यूज़ कर रहे थे बट अलग अलग कर रहे थे, ठीक है। तो क्या नीड हुई हमको इस कन्वर्जेंस की, वो देखते हैं। तो वाई द रीज़न ऑफ वाई वी नीड दैट, और द रीज़न ऑफ कन्वर्जेंस, द रैपिड एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ इंटरनेट अलॉन्ग विद द इमर्ज ऑफ वेरियस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज in the digital media space has created the need to converge multiple technology. Okay, the availability of the carrier technology with high bandwidth has the advantage of transmitting not only voice but also data, picture and other interactive media through one single carrier like fiber optic cable or satellites, etc. Okay, so earlier in the field of communication, the different media used different technology. Voice conversation was done using a phone. Video communication used high end video phone. Okay, face smile copy came into extents using fax machine, and email was done using a computer. So now with the help of convergence, the device not only internet with the media but are capable to handle larger number of other format. Okay, so with the help of convergence we can use these all different type of media or these all different type of technologies with the help of single device. Okay, so ये था आपका रीज़न कन्वर्जेंस का। ओके, सो एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस। ओके, सो टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस जो आप आपकी डेली रूटीन लाइफ में आप लोग देख रहे हैं वो क्या है, ठीक है। देखते हैं कि हम लोग हमारे जो डेली लाइफ में आप लोग जो डिवाइसेस यूज़ में ले रहे हैं, ठीक है, उसमें कहाँ कहाँ आपको कन्वर्जेंस देखने को मिल सकता है। ओके, तो जैसे कि आप लोग जो इस फ़ोन से आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, ये भी एक तरीके से एक क्या है, एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी है, ठीक है। और आगे देखते हैं हम लोग कि क्या क्या हमारे आसपास जो हमारे रूम में जो चीज़ें हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर टू और मोर टेक्नोलॉजीज़ को इमर्ज करके एक नया डिवाइस बना दिया गया है। ओके, सो फर्स्ट वन इज़ DVD player are not only capable to play DVD but can also play a different format like CDs, photo CDs as well as encoded video format such as a DivX or CVD. Okay, so अभी जो आप लोग DVD player अगर if you have in your home, okay, so with by this particular DVD player you can play not only DVD, so you can play also CDs also. ओके, सो वो क्या है, तो CD प्लेयर पहले अलग आया करता था और DVD प्लेयर पहले अलग आया करता था, ठीक है। सो द बोथ आर द डिफरेंट कंटेंट और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, बट अब क्या कर दिया है कि दोनों प्लेयर को कॉम्पैक्ट करके एक सिंगल डिवाइस बनाया और एक उस पर्टिकुलर सिंगल डिवाइस के हेल्प से हम लोग दोनों टाइप के फॉर्मेट को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। ओके, नया एक और एग्जांपल, जैसे आप लोगों का अब जो स्मार्ट TV आ रहा है, ठीक है, उसमें भी क्या हो रहा है, तो पहले जो TV आते थे हम लोग केवल वो एज अ वीडियो हम लोग देखने के लिए काम में लेते थे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ केबल और विद द हेल्प ऑफ DTH। बट अब जो स्मार्ट TVs आ रहे हैं वो हम लोग कैसे यूज़ में ले सकते हैं, हम उसके अंदर पेन ड्राइव लगा सकते हैं, अलग टाइप ऑफ मीडिया हम लोग उसमें प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो वो भी क्या है, एक तरीके से टेक्नोलॉजी कन्वर्जेंस का एक एग्जाम्पल है, ठीक है, क्योंकि पहले जो TV आते थे बड़े वाले उसके अंदर हम लोग वो ये सारे फैसिलिटीज़ यूज़ में नहीं लेते, बट आप आजकल क्या हो गया, स्मार्ट TVs आ गए, ठीक है। सो यू कैन यूज़ द इंटरनेट फैसिलिटी इन दैट पर्टिकुलर LED TV। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो ए एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजी कन्वर्जेंस। ओके, तो सेकेंड, सो टेक्नोलॉजी कन्वर्जेंस हैज़ प्रोडक्ट डिवाइस which are designed especially to replace a number of different devices, for example smartphone and tablet. Okay,
सो टेक्नोलॉजी कन्वर्जेंस की रीज़न भी एक तरीके से ये भी है कि क्या किया इसने, बाकी सारे डिवाइसेस को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, ठीक है। क्योंकि अब क्या हुआ, हम लोग विद द हेल्प ऑफ स्मार्टफोन और टैबलेट हम लोग बहुत सारी चीज़ें तो वैसे ही कर पाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग डिवाइसेस रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि पहले हम लोग म्यूज़िक सुनने के लिए हम लोग आईपैड काम में लिया करते थे, ठीक है। अगर गेम हमको खेलना था तो प्ले स्टेशन या फिर एक वीडियो गेम करके जो अलग से डिवाइस आता था वो हम लोग काम में लेते थे। तो अलग अलग ये चीज़ें काम में ले, अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करने के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस काम में लिया करते थे। बट नाउ we are with the help of that particular single device like your smartphone or your tablet, so you can these all type of technologies in single device, okay. So now third point is internet is the best example of technology convergence. Almost all the entertainment technologies like radio, television, video and book have emerged into a single media which can easily be viewed or played online, ओके। सो इंटरनेट इज़ द बेस्ट एग्जांपल है बाकी सारी कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजीज़ का, ठीक है। तो अगर इफ़ यू वांट टू लिसन द रेडियो, इफ़ यू वांट टू लिसन न्यू म्यूज़िक और इफ़ यू वांट टू वॉच सम न्यू वीडियोज़ और ओल्ड वीडियोज़, ओके। तो ये सब चीज़ें करने के लिए हमको पहले अलग अलग जगह अलग अलग डिवाइसेस को यूज़ करना पड़ता था। बट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट यू कैन लिसन एट एनी टाइप ऑफ चैनल ऑफ रेडियो और FM, okay. So you can watch anything or you can listen any type of music with the help of internet. So internet is the best example of the technology convergence, okay. So ये चीज़, so I think so in this video you have learned about the basic meaning or the about the convergence and convergence of technology, okay. So in next video we will start from this 3 C's of technology convergence and the remaining part of this chapter, okay. So till then if you have any doubt, so you can write in the comment section, okay, or you can ask in our live session which we will conduct after the completing this chapter, okay. So till then subscribe this channel and stay happy and stay safe. Goodbye.